Hello dear students, good morning. Today we are going to look about class 10th, the revision session. That is what we have been seeing since last 2 weeks. Today we are about to complete our revision session. Hopefully, we are in the second unit right now. Today we are going to revise unit number 2, जो कि आपकी मेन टेक्स्ट बुक का यूनिट है. The title of this unit is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Now, dear student, as you all are aware that many countries or many Asian countries are being ruled or were being ruled by Britishers. And among this country, many of the freedom fighters came in front to give the freedom to their country, and they sacrifice a lot of things, including their life. Without wasting too much time, let's discuss about this unit. The unit started at one of the inauguration ceremony where Nelson Mandela used to give the speech in which he just described how they have got it and what kind of struggle they had to make to get it. Let's talk about it. The inauguration day, the 10th May, down 10वीं मई सुबह का समय था. It was bright and clear. पूरा आसमान खुला था, अच्छा दिन था. Many world leaders had been coming to the author to pay respect to him. दुनिया के अलग अलग कोने से, अलग अलग देशों से बहुत सारे लीडर्स वहां पे आ रहे थे. It was before the inauguration के समय के पहले का टाइम जो समय है वो बताया गया है. The inauguration was to be the largest gathering of world leaders there. ये जो inauguration ceremony है dear student, उसमें वो लोग चाहते थे कि ये सबसे बड़ी हो और वर्ल्ड के करीबन सभी लीडर्स वहां पे मौजूद रहे. Now let's talk about where the inauguration used to be taken a place. The inauguration ceremony took place in the big open building in Pretoria. Pretoria एक प्लेस है, राइट? वहां पे खुली जगह है, वहां पे इनॉग्रेशन हो रहा था. Here the South Africa's first democratic non-racial government, non-racial मतलब जातिवाद से मुक्त ऐसी सरकार बनने जा रही थी. And this is the place where the inauguration started. The swearing in the ceremony, one by one, the ceremony has started, dear student. And people who took the responsibility to run the government democratically and non-racially, many of the leaders started taking swear, an oath we can say. On that day, the author was in the company of his daughters, Zanani. Mr. D. Clark was first sworn in as a second deputy president. This is what the name, dear student, that you have to keep in your mind, that Dr. Clark was the first person who sworn in this democratic and non-racial government.
as a second deputy president. Then Thabo Mbeki was sworn in as a first deputy president. It was the author's turn now. अब उसके बाद author का turn था. He sworn in as a president. उन्होंने president के तौर पर सौगंध ली. He pledged, कसम खाना जिसको आप बोलते हो, to obey and uphold the constitution. उन्होंने कहा कि मैं अपनी जी जान अदा कर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करूंगा. He also pledged to devote himself for the well-being of the people of South Africa. साउथ अफ्रीका के लोगों की भलाई के लिए वो हर मुमकिन चीज करने को तैयार है जो उसको एज अ लीडर करनी चाहिए. नाउ इट इज ऑथर्स टर्न डियर स्टूडेंट. अब ये कसम खाने के बाद ऑथर को टाइम दिया गया कि वो अपने पब्लिक को कुछ बोले, कहे, दो चार वो सेंटेंस या 5-10 मिनट की स्पीच बोले. Let's talk that what he said. He said that we are as a newborn liberty country. He thanked all the international guests who were present at that time. हमारे ऑथर ने एज अ प्रेसिडेंट प्लेज लेने के बाद जो वहां पे आए थे अंतरराष्ट्रीय गेस्ट जिनको इनवाइट किया गया था उन सभी का तहे दिल से स्वागत करते हुए he said that they had come that to be with his countrymen. उन्होंने कहा कि उनको ये कंट्रीमैन के साथ होना चाहिए. It was the common victory for justice. उन्होंने ये भी कहा कि ये हमारी जीत नहीं है, हमारे देश के लोगों की जीत तो है ही है, लेकिन वास्तव में ये जीत जस्टिस यानी न्याय, पीस यानी शांति, एंड ह्यूमन डिग्निटी यानी मानव का जो गर्व है उसको बचाने के लिए ये जीत मानी जाएगी. He pledged to liberty or liberate his people from poverty. हमारे ऑथर ने एज अ प्रेसिडेंट सौगंध लेने के बाद वो भी कहा कि मैं अपने लोगों को इस गरीबी से बाहर निकालने की कोशिश करूंगा. उनके जो सफरिंग से दुख है, ये डिस्क्रिमिनेशन है, जो नाती जात पात का जो भेदभाव है, गोरे काले का जो भेदभाव है वहां पे जो चल रहा है, डिस्क्रिमिनेशन ये जो हो रहा है बड़े छोटे तबके के लोगों के बीच, तो ये सारे मिटाने के लिए हमारा ऑथर बात कर रहा है. नाउ जब ये सेरेमनी चल रही थी तब वहां पे कुछ जेट्स एंड हेलीकॉप्टर्स दिखाई दिए जिन्होंने कलरफुल जो फॉग है वो वहां से छोड़ा. देखते हैं क्या है. आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स कलरफुल साउथ अफ्रीकन जेट्स एंड हेलीकॉप्टर्स फ्ली ओवर द यूनियन बिल्डिंग. जिस बिल्डिंग में ये सेरेमनी हो रही थी उस बिल्डिंग के ऊपर से जेट्स एंड हेलीकॉप्टर्स निकले. इट वाज फ्रॉम द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी फॉर द न्यू गवर्नमेंट. ये बताने के लिए था कि मिलिट्री उस देश की उनके साथ है और ये नई लोकतांत्रिक जो गवर्नमेंट रचने जा रही है, बनने जा रही है, उनका वे भी स्वागत करते हैं. Then the highest military generals having medals on their chest saluted the author. सारे के सारे मिलिट्री के जो बड़े ओहदेदार थे, लेफ्टिनेंट और मेजर, वो सब उन्होंने उस देश के नए इलेक्ट हुए प्रेसिडेंट को सल्यूट किया. They thought that they would have arrested him many years before. और वे अपने मन में सोचते थे कि शायद वे लोग इस नए सिलेक्ट और इलेक्ट हुए प्रेसिडेंट को बहुत सालों पहले शायद उन्होंने अरेस्ट भी किया होता या कर सकते थे. सिंगिंग ऑफ द नेशनल एंथम. इसके बाद डियर स्टूडेंट ये सारी चीजें होने के बाद नेशनल एंथम उन्होंने जो बनाया था वो गाना शुरू किया.
The day was symbolized for the authors by being the playing two national anthem. The whites sang Nakosi Sikele and the blacks sang Daisting. These are the two different national anthems were played over there. This formed the old anthems of the Republic. The author's thoughts on that day of the inauguration, the author thought that of history in the first decade, the South African people had patched up their differences with the other black-skinned people. यहाँ पे ऑथर वो दिन याद करता है कि भाई एक समय था कि जहां पे एक दायका चल रहा था कि जहां पे काले लोगों को वहां पे बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था और उनको बिकॉज ऑफ ओनली द ब्लैक कलर स्किन दे आर बीन इग्नोर्ड टोटली. They have built a system of superiority also. It was the basis of the Hessian societies. The system had now stood overturned. Now it was the system that recognized the rights and the freedom of all the people. एक समय था साउथ अफ्रीका के अंदर एक ऐसी सोसाइटी थी कि जहां पे लोग काले और गोरे, काले और गोरे के बीच में ये सारा का सारा चल रहा था जो विवाद. लेकिन अब नई गवर्नमेंट बनने के बाद the whole new government will recognize them as their pioneer rights of freedom for the all people. वो लोग चाहेंगे कि अब सभी को एक समान अधिकार दिया जाए, सभी को आजादी से घूमने का अधिकार है. Now author regrets. Why and what author regrets for? Author regrets this auspicious day came after the sacrifices of thousands of people. Regret कर रहा है because वो सोचते हैं कि ये सारी की सारी चीजें जो हम खुशी के पल और ये नॉन रेशियल गवर्नमेंट जो भी बनने जा रही है, राइट, सभी के लिए एक समान अधिकार वाली जो गवर्नमेंट अभी जा रही है बनने, ये गवर्नमेंट बहुत सारे सैक्रिफाइसेस के बाद आई है. बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन त्यागा तब जाकर ये मिले. द ऑथर थॉट ऑफ हिमसेल्फ द सम ऑफ ऑल दिस पीपल. He was pained that he couldn't thank them. ऑथर ये भी बोल रहा है सभी को पब्लिकली कि जिन्होंने अपनी जान गंवाई है ये चीज करने के लिए, ऑथर हमारा चाहता था कि उनको वो उनका आभार व्यक्त करें, लेकिन वो वहां पे हाजिर नहीं थे. फ्रीडम फाइटर्स रिमेंबर, उस टाइम पे जितने भी फाइटर्स थे आजादी के, तो उन सभी को यहाँ पे याद किया गया. यहाँ पे लिखा है, डियर स्टूडेंट, दिस पॉलिसी हैड प्रोड्यूस्ड ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स. दे वर लाइक ऑलिवर टेम्बोस, वॉल्टर सिसलस, चीफ लुथियोलिस, यूसुफ. These are the names, dear student, which you should remember. It may be possible that it can be asked in the form of question. यहाँ पे जो हमारा ऑथर है जो ये स्पीच बोल रहा है, उसने इन सभी को याद किया और याद करने के बाद उन्होंने कहा कि दे वर ऑफ अनकॉमन करेज, बहुत बहादुर थे, विजडम एंड जनरसिटी उन लोगों के अंदर थी. दे डाइड फॉर द कंट्री वेलफेयर एंड द वेल्थ ऑफ द कंट्री. तो इस तरह से हमारे नए बने हुए प्रेसिडेंट जो ऑथर थे, उन ऑथर ने ये सभी फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस की उनको याद किया. यहाँ पे हमारा ऑथर करेज की डेफिनेशन देते हुए बोलता है कि दे रिस्क देयर लाइव्स, दे अंडरवेंट ग्रेट टॉर्चर. बहुत सारी टॉर्चर में से पसार हुए, सारी हदें तोड़ दी उन टॉर्चर की. They learned that courage was not absence of fear, but the victory over it.
हमारा राइटर बोल रहा है कि बहादुरी का मतलब ये नहीं है कि आप डर अगर ना हो वहां पे जीत मिलती है, बहादुरी मिलती है। लेकिन उन्होंने उस डेफिनेशन को चेंज करते हुए कहा कि करेज का मतलब होता है कि आप अपने ही डर पे पहले जीत हासिल करो, फिर बाहरी डर को तो आप आसानी से हासिल कर, लेकिन अपने भीतर का जो डर है कि वो काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, भीतर का जो डर है उस पर अगर एक बार आपने जीत हासिल कर ली, विक्ट्री हासिल कर ली, तो बाहर की दुनिया में आप अपने आप विजेता बन जाओगे। Man's natural goodness. The author says that no one is born hating another person due to the color or religion. हमारा राइटर ये भी बताना चाहता है कि कोई भी बंदा जब पैदा होता है तब से एक दूसरे, काले या गोरे, इस तरह से वो कभी भी एक दूसरे को हेट नहीं करता है, ना ही उनके धर्म को हेट करता है। द ऑथर ऑल्सो advantage that he found it difficult to fulfill these duties. He says that they could be taught to love. हमारा राइटर कहता है कि जब पैदा होते ही बच्चा ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, ना काला, ना गोरा, उसको कुछ नहीं मालूम होता, जब हम उनके कानों में इस तरह का पॉइजन डालना शुरू करते हैं, इसकी जगह पे हमारा राइटर बोल रहा है कि उनको प्रेम भाव सिखाओ, सद्भाव सिखाओ, ब्रदरहुड की फीलिंग्स सिखाओ। लव कम्स नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट। इन प्रिजन दे वर पुश्ड टू द वॉल। जब उनको जेलों में डाला जाता था तब उनको एक दीवार से सटा के अलग कर दिया जाता था। बट ही सॉ द ह्यूमैनिटी इन द हार्ट्स ऑफ द गार्ड्स। हमारा राइटर याद करा है कि वहां पे जो गार्ड्स था उनमें अभी भी मानवता थी। इट वॉज अ मैन्स एसेंशियल गुडनेस। और हमारा ऑथर जो कि नया प्रेसिडेंट भी बना है वो बोलता है कि ये गुडनेस जो है एक एसेंशियल पार्ट है जो मानव को मानव बनाता है, मनुष्य को मनुष्य बनाता है, एंड इट शुड बी देयर। यहाँ पे हमारा ऑथर प्रेसिडेंट बनने के बाद एक और चीज याद करवाता है कि व्हाट आर द ड्यूटीज इन लाइफ। एवरी मैन हैज ट्विन ड्यूटीज टुवर्ड्स हिज फैमिली, टुवर्ड्स द कम्युनिटी एंड कंट्री। यहाँ पे हमारा राइटर बता रहा है कि हर कोई बंदा जब बर्थ लेता है तब उसके पास 3 प्रकार की ड्यूटीज होती है। एक अपने फैमिली के प्रति, एक अपने समाज के प्रति और एक अपने देश के प्रति। The author found it difficult to fulfill these 2 duties. It was because a colored man in South Africa was pushed or punished if he lived like a human being. Such a man was forced to live apart from his own people. So he was not allowed to do these duties to his family. यहाँ पे हमारा राइटर बता रहा है कि एक समय ऐसा था साउथ अफ्रीका के अंदर कि अगर वो अपने फैमिली की ड्यूटी करने जाए तो वे अपने कम्युनिटी या अपने देश की ड्यूटी ठीक से नहीं कर पाएगा। उस टाइम पे इतना जो ये काले गोरे का जो भेदभाव चल रहा था उसकी वजह से ये हमारा राइटर अभी बता रहा है। लेकिन वहां पे राइटर अंततः एक स्टेटमेंट भी बोलता है, ही वॉज नॉट अलाउड टू डू हिज ड्यूटी टू हिज फैमिली। उसको अपनी फैमिली के प्रति की जो ड्यूटी थी उस टाइम पे उनको वो करने से भी अटकाया जाता था। लेकिन अब जो नॉन रेशियल न्यू गवर्नमेंट जो बनी है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो बनी है, वो ये नहीं होने देगी। एक्चुअली ऑथर ने इसी बात पे फ्रीडम को डिफाइंड भी किया। हमारा राइटर फ्रीडम को डिफाइन करते हुए बोल रहा है कि ऑल आर born free. He was not born with the hunger to be free. वो आजाद होने की भूख से नहीं पैदा हुआ था। He was free as long as he obeyed his father and obeyed the customs of his tribe. वे ऐसा मानता था कि वो अपने पिताजी या अपने कस्बे, ट्राइब यानी कस्बे
कि जो कस्टम्स यानी रिवाज थे उनको फॉलो करता था, तब तक वो अपने आप को फ्री मानता था। बट एज सुन एज ही रियलाइज दैट हिज फ्रीडम वाज इन इल्यूजन, उसको मालूम था कि ये जो आजादी वो मान रहा है, सोच रहा है, वो वास्तविक आजादी नहीं है। एक्चुअली दे ऑल आर बीइंग सप्रेस्ड बाय द व्हाइटिश पीपल। ही बिगन टू हंगर फॉर द फ्रीडम। तब जाके उसको उसके अंदर एक जज्बा निकला कि मुझे अपने देश के लोगों को, अपने आप को, अपने ट्राइब को आजाद करवाना है। As a student, he wanted a freedom to read and go. एक विद्यार्थी के तौर पे उसको जो चाहिए वो पढ़ सके, उसको चाहिए वो कक्षा में आगे वो बढ़ सके, उसकी फ्रीडम चाहिए थी। As a young man in Johannesburg, he wanted a freedom to be as per his potential. जोहानिसबर्ग के अंदर उसको जब काम की बात की गई, तब वहां पे वो मानते थे हमारे राइटर कि उसके पोटेंशियल मतलब उसकी जो क्षमताएं है उसके हिसाब से काम दे या काम करने दे, तब उसको वास्तविक फ्रीडम बोलेंगे। He also wanted a freedom of livelihood of his own life and his family. डियर स्टूडेंट, यहाँ पे वो ये भी चाहता था कि वास्तविक फ्रीडम का मतलब होता है कि वो खुद मन चाहे उस तरह से रह सके और उसका फैमिली भी अपने हिसाब से रह सके, उसको वास्तविक में फ्रीडम मानते थे। डिजायर फॉर फ्रीडम मेड हिज ब्लड, उसको इतना मक्कम यानी डिटरमाइंड बनाने के लिए कौन सा जज्बा काम कर गया डियर स्टूडेंट? यहाँ पे उसको इतना डिटरमाइंड बनाने के लिए सभी को मुक्त कराने का जो एक डिटर्मिनेशन उसके अंदर था वो उसको आगे बढ़ा गया। बट soon he saw that he was also not free like his brothers and sister. थोड़ी ही अंतराल के बाद उसको लाइफ में जैसे ही वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसको मालूम पड़ा कि वो अपने भाई बहन की तरह वो भी आजाद नहीं है। Then he joined the African National Congress. उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। His hunger for freedom became a great for the freedom of his people. उसने वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में जाने के बाद अपने ही लोगों को मुक्त कराने के लिए उसने बहुत सारी कोशिशें शुरू कर दी। The desire for the freedom of his people to live with the dignity gave him power. वो चाहता था कि अपने तबके के लोग एक डिग्निटी से, गर्व से रह सके अपनी सोसाइटी में। यही सोच उसको और पावर देती थी कि वो आगे बढ़े और लड़े अपने लोगों के लिए। It made him very bold. This thing made him a bold and it made him a live like a monk. और यही चीज एक संत की तरह उसको जीने में मदद भी करती थी। The sense on his people become sense of for he too. अपने लोगों को प्रति कुछ कर दिखाने की जो उसके अंदर भावना थी वो अब धीरे धीरे सभी में वो डेवलप करता गया। Dear student, towards the end of and the last part of this unit is oppressors and the oppressed without humanity. Oppressed मतलब दबाना, छोड़ना उसको। The author knew that the oppressor must be liberated like oppressed. A man who takes away another's freedom become the hated. यहाँ पे राइटर बता रहा है कि कोई एक ऐसा बंदा कि जो दूसरे लोगों की आजादी को छीन लेता है, वो दूसरे मनुष्यों की आंखों में गुस्से का पात्र या नफरत का पात्र बन सकता है। No one is free if he is taking someone else's freedom. कोई भी बंदा तब तक आजाद नहीं है जब तक वो किसी दूसरे की फ्रीडम हथिया ले। Both the oppressors and oppressed are robbed of humanity. ऐसे दोनों प्रकार के लोगों ने, जो दबाने वाले हैं वो और जो दब चुके हैं वो दोनों लोगों ने मानवता को नुकसान पहुंचाया। I hope, my dear student, this will help you to understand the unit better, right?
Please keep reading, right? And please do not forget to write these portion into your notebook. Stay home, stay safe. Thank you very much.